اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شروع ہو گئے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ علیہ السلام کی دائیا رہ چکی تھی، آپ علیہ السلام پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد بن ولید جب مدینہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، انہیں اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال انہیں پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون ان کے سامنے بہہ گیا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ جہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی علیہ السلام پر حملے کا حکم دے دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن قمہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام امارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ ام امارہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا۔ مصعب بن عمیر کا قد اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قمہ مصعب رضی اللہ عنہ کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے ابن قمہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمہ کا ایک وار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ ام امارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمہ نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمہ نے ام امارہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریبی تھے ابن قمہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمہ نے پینترا بدل کر آپ علیہ السلام پر ایسا وار کیا جو آپ علیہ السلام کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ علیہ السلام کے کندھے پر لگی۔ آپ علیہ السلام کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔
वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था, मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर। वो हौसला हार बैठे और उहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अपने नबी के शहदाइयों, अगर नबी अलैहिस्सलाम न रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहे। तुम कैसे शहदाई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत के डर से भाग रहे। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बबूला कर दिया। वो प्यादा थे लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और इकरिमा के घुड़सवारों पर हुआ था। खालिद बिन वलीद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था। उनमें एक रिफा बिन बख्श भी थे। खालिद बिन वलीद के दिल में दर्द की एक टीस उठी। उन्हें कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाते रहे, लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझते थे। अब मुसलमानों का दमखम टूट चुका था। प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते? वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ एक तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह मुसलमानों ने फतह की खुशी में अपना मोर्चा छोड़ दिया था और जंग का पांसा अपने खिलाफ पलट लिया था, उसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर और तड़पते हुए जख्मियों पर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। उनमें से कुछ कुरैश रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में भी चले गए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के साथियों ने उन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला कि उनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आप अलैहिस्सलाम के 30 सहाबा में से 16 शहीद हो चुके थे। जो 14 जिंदा थे उनमें ज्यादातर जख्मी। आप अलैहिस्सलाम ने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझ कर के रसूल अकरम नाउजुबिल्लाह शहीद हो चुके हैं, सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए। कुछ वापस मदीना चले गए, कुछ कुरैश के इंतकाम से बचने के लिए पहाड़ी के अंदर मौजूद थे, जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जख्मों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत मिली। आप अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आप अलैहिस्सलाम को हर तरफ तलाश कर करके थक चुकी थी, आप अलैहिस्सलाम के पास आ पहुंची थी। करीब ही एक चश्मा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से किसी चीज में पानी लाए और आप अलैहिस्सलाम को पिलाया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके जख्म धोने लगी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। खालिद बिन वलीद को आज याद आ रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर ने उन्हें कैसा रूहानी सा इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उन्हें चौंका दिया। वादी में ललकार की गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज में कह रहा था, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत है। इस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ था। उसने अपने आप से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है। हुआ यूं था कि जिस तरह मुसलमान इक्का दुक्का इधर उधर बिखर गए थे या छुप गए थे, उसी तरह काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नाम का एक मुसलमान इधर उधर घूमता पहाड़ी के उस मकाम की तरफ चला गया जहां रसूल अकरम सस्ता रहे थे। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा है। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर बिखर गए थे, उस आवाज पर दौड़ कर आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसी आवाज पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे थे। इससे पहले अबू सुफियान मैदान जंग में पड़ी हुई हर एक लाश को देखता फिर रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक तलाश कर रहा था। उसे कुरैश का जो भी आदमी मिलता वो उससे पूछता, तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? इसी तलाश में खालिद बिन वलीद उसके सामने आ गया। अबू सुफियान ने पूछा, खालिद तुमने मोहम्मद की लाश नहीं देखी? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, नहीं। और अबू सुफियान की तरफ जरा झुककर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुका है? अबू सुफियान ने जवाब दिया, हाँ, वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है, तुम्हें शक है? खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया, हाँ अबू सुफियान, मैं उस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक कि अपनी आंखों से न देख लूं। मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं। अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा, मालूम होता है तुम पर उसका तिलिस्म तारी हो गया है। क्या मोहम्मद हम में से नहीं था? क्या तुम उसे नहीं जानते? जो शख्स इतनी कत्ल गारत का जिम्मेदार है, एक रोज उसे भी कत्ल होना है। वो कत्ल हो चुका है। जाओ और देखो, उसकी लाश को पहचानो, हम उसका सर काट कर मक्का ले जाएंगे। एन उसी वक्त पहाड़ी में से काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार गरजी, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत है।
फिर ये आवाज बिजली की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिरती रही। खालिद ने कहा, सुन लिया अबू सुफियान, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद कहाँ है। मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद को कत्ल करके आऊंगा। कुछ देर पहले खालिद बिन वलीद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर थे। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा था। मशहूर मौरिख इब्न हिशाम की तहरीर से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद को अपने सवारों के साथ उस घाटी पर चढ़ते देखा जहां आप अलैहिस्सलाम थे, तो आप अलैहिस्सलाम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, खुदा जुल जलाल इन्हें इस वक्त वहीं कहीं रोक ले। खालिद अपने सवारों के साथ घाटी चढ़ता जा रहा था। वो एक दर्रा सा था जो तंग होता चला जा रहा था। घोड़ों को एक कतार में होना पड़ा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खालिद और उसके सवारों को ऊपर आते हुए देखा तो वो तलवार निकाल कर कुछ नीचे उतरे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ललकारा, वलीद के बेटे, अगर लड़ाई लड़ना जानते हो तो इस दर्रे की तंगी को देख लो, इस चढ़ाई को देख लो। क्या तुम अपने सवारों के साथ हमारे हाथ से बचकर निकल जाओगे? खालिद लड़ने के फन को खूब समझता था। उसने देख लिया था कि ये जगह घोड़ों को घुमा फिरा कर लड़ने के लिए मौजू नहीं है, बल्कि खतरनाक है। खालिद ने खामोशी से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सवारों के साथ वहां से नीचे उतर आया। जंगे ओहद खत्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बर्तरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। खालिद बिन वलीद को जैसे अपनी आवाज सुनाई दी, लेकिन ये हमारी शिकस्त थी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद को कत्ल करते थे। खालिद ने अपने आप में झुंझुनाहट महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसके दांत बजने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा। उसने इस भयानक याद को जहन से निकालने के लिए सर को झटका दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द भिनभिनाती रही। उसे अपने आप में शर्म सी महसूस होने लगी। जंगजू यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार पर वापस आ रहे थे तो उस बुलंदी से उसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहां लाशें बिखरी हुई थी, शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए न अभी मुसलमान आगे बढ़े थे न कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी हिंद नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुए दौड़े चली आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ आई थीं, उसके पीछे पीछे दौड़ी। हिंद हर एक लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आती तो वो पांव की ठोकर से उस लाश को सीधा करके देखती। उसने अपने साथ की औरतों से कहा कि वो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश तलाश करें। उसे हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश मिल गई। हिंद भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने दूसरी औरतों को देखा जो उसके करीब खड़ी थी। हिंद ने उन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो चुकी हो, खड़ी क्या दिख रही हो? ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल कर दिया। जाओ मुसलमानों की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले। अब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गईं तो हिंद ने खंजर से हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट चाक करके उसके अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा था। हिंद ने वो खंजर से काट लिया। उसने उसी पर इक्तिफा न किया। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कलेजे का एक टुकड़ा काट कर उसने अपने मुंह में डाल दिया और बुरी तरह उसे चबाने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कलेजे के उस टुकड़े को उगल दिया। खालिद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हिंद की इस वहशियाना हरकत ने खालिद का मजा किरकिरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया, बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद बिन वलीद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जाकर घोड़ा रोक दिया। खालिद ने गुस्से और हक़ारत के मिले जुले लहजे में कहा, अबू सुफियान, क्या तुम अपनी बीवी और इन औरतों की इस वहशियाना हरकत को पसंद कर रहे हो? अबू सुफियान ने खालिद की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जिनमें बेबसी की झलक थी और साफ पता चलता था कि उसे लाशों के साथ अपनी बीवी का ये सलूक पसंद नहीं। खामोश क्यों हो अबू सुफियान? अबू सुफियान ने दबीसी जबान में कहा, तुम हिंद को जानते हो खालिद, ये औरत इस वक्त पागलों से बदतर है।
अगर मैं या तुम इसे रोकने के लिए आगे बढ़े तो ये खंजर से हमारे पेट भी चाक कर देगी। खालिद हिंद को जानता था। वो अबू सुफियान की बेबसी को समझ गया। अबू सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद बिन वलीद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे जुबैर बिन मुतिम का गुलाम वाहशी बिन हर्ब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्छी थी जिससे उसने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। हिंद ने तहक्कुमाना लहजे में उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े करो। वाहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था। उसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। उसने हिंद का हुक्म मानने के बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गई। हिंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वाहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे। और वाहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वाहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वाहशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर उस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। हिंद ने जोशीली आवाज में उस हबशी को बुलाया, ठहर जा बिन हर्ब। वो जब उसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी हैं? देखो वो जवान भी हैं और खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ। वाहशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया।